Paras, how are you? Yeah, I'm great. Gaurav, how are you doing? I'm good. I'm good. Okay. For our viewers, uh, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए. So myself, Paras Bansal, and I'm right now working with Odgers, and I'm working with our client UIDI, that is Aadhaar Development of Aadhaar Development Authority of India. Okay, so we are here working as a data analyst assigned to, our primary role is to use data to find out fraudulent or frauds in Aadhaar system. Okay, so I'll just explain you about myself and then we'll come to the job later on. So I did my bachelor's from Punjab University with Gaurav, and he was my batchmate. And then I pursued my master's from Punjab Engineering College, Chandigarh, and I completed my master's in July 15. And after that, for 4 5 months, I prepared for government exams. But as everyone knows, government exams are not easy, and luck didn't favor me. So I was not able to get a good job in government exam. So I tried, like everyone who doesn't get job in, then I tried to pursue career in corporate, IT sectors. So in December 2015, I got job in, some company by some referral, but it was not into the data analyst, field. So from December 15 till March 18, I worked there. And from March 18 till current date, I'm working with August and working at location of this Delhi. So this is my just a brief intro about myself and Cool. Cool. other. तो आप अपने करंट जॉब पे आप डेटा एनालिस्ट हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए ब्रीफ में. ओके, तो जो मेरी डेटा एनालिस्ट की जॉब है, व्हाट इज इट लाइक, अगर हम जैसे भी आधार केंद्र पे जाते हैं आधार का अपना डाटा बनवाने, तो जो पर्सन है वो एनरोलमेंट कर रहा होता है, राइट. सो एवरी टाइम एक एनरोलमेंट होती है, डाटा इज क्रिएटेड. ठीक है, डाटा जो क्रिएट हो रहा है, दैट कंस्ट्रेंट्स लोकेशन एंड सो ऑन, मतलब number of variables. So we have to just find out if this thing is genuine, like person is doing enrollment again and again. So we have to just try to find out scenarios where person might be doing some fraudulent thing, right? So we have to just avoid frauds. That's our basic job to, use data to find out frauds. राइट, राइट, ग्रेट. और आपकी प्रीवियस जॉब जो थी इससे पहले, व्हाट वाज इट लाइक? वाज इट रिलेटेड टू डेटा It एनालिटिक्स? was okay. No, it was not into pure data analytics. It was something like, into like intellectual property rights. Okay, so what we used to do that, we got ideas by inventors, and we used to just search if this idea is novel or not, and if it is patentable, then we give a go ahead, or else no, it's not patentable. That's it. So that was our kind of theoretical job, research based job. ओके, राइट. तो Yeah. आपने ट्रांजिशन करने का, व्हाई डिड यू चूज टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम आईपीआर टू डेटा एनालिटिक्स? Okay. तो दो चीजें थी इसमें गौरव. एक्चुअली आई विल लाइक टू टेल द ऑडियंस दैट starting package was good in my, IP career, but after that the saturation came quite early in that, because in IP there are limited companies. Okay, there are 4 5 companies that give you good packages and good, companies are good, and ambience and environment wise and all. And second thing was, data science is a growing field even right now. So using data to get insights is, upcoming scenarios, where I thought that this career will be a boom for me. And even right now, if we talk about, everyone is looking to make a career in this field. So I राइट, think I made a good decision, transit from उस job से, from this job to this job. करेक्ट. ट्रू मैन, डेटा इज नाउ द हॉटेस्ट जॉब आउट देयर. ट्रू. Right. And it will be for, I think, at least 5 to 10 years. ट्रू. ओके. अभी आपने ट्रांजिशन किया लाइक फ्रॉम नॉन डेटा टू डेटा, तो व्हाट वाज योर जर्नी Yeah. लाइक? आपने कहाँ से सीखा और कैसा आपका जॉब ढूंढने का प्रोसेस रहा? Okay. So basically, I started from, online searches and all, like website analytics with the. So I
read out blogs there by some persons जिन्होंने transition करा है already, even 10 years 12 years experience guys were transitioning, तो वो website ने काफी help करी to keep me motivated. और उसके बाद फिर एंड आई started learning some things. बट सबसे डिफरेंट थिंग थी जो मशीन लर्निंग एंड एआई जब मैंने स्टार्ट करा, आई स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एमएल. द इशू देयर वाज दैट एमएल हैज टू बी अप्लाइड ऑन डाटा. इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट डाटा देन आई कांट अप्लाई एमएल. सो मेरे बहुत इंटरव्यूज में फर्स्ट राउंड में बाहर, बिकॉज एसक्यूएल वाज द बेसिक रिक्वायरमेंट, एक्सट्रैक्ट 5 to 10 courses, then again switched on to back to one, because after going through all those courses I was, मुझे पता लगा कि नहीं, जो फर्स्ट था वही ठीक था. दिस वाज जस्ट अ समबडी के हिट एंड ट्रायल किया आपने सीखने के लिए, जो सही मेरे को लगता है सही है. ऐसे ही प्रोसेस चलता है सेल्फ लर्निंग में. राइट, एग्जैक्ट. या नए फॉर न्यू इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हु आर कमिंग राइट आउट ऑफ कॉलेज, आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए ये एडवाइस रहेगा, इफ दे वांट टू परस्यू इन अ स्पेसिफिक फील्ड, लाइक से आई हैव सीन सम ग्रेजुएट्स जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से सोच लेते हैं कि आई विल परस्यू दिस फील्ड. सो डोंट ट्राई दैट, बिकॉज एटलीस्ट यू हैव टू गुड टू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द फील्ड्स, देन डिसाइड वन. अगर आप पहले ही सोच के चलते हैं कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, एक्सपेक्ट करके चलते हैं बहुत चीजें, एंड जब आप उस कंपनी में जाते हैं उसी फील्ड में जो आपको 4 ईयर से या मे बी फ्रॉम लेट्स से 6-7 years आपका ड्रीम था, एंड यू डोंट गेट अ गुड थिंग्स, तो आपको बड़ी डिमोटिवेशन होती है, राइट? सो जस्ट बी ओपन. ठीक है, जहाँ पे जॉब मिल रही है ट्राई दैट. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल सेटिस्फाइड तो स्विच करो, बट नॉट कि मुझे इसी में चाहिए, आई विल गो ओनली इन गूगल, मैं नहीं आऊंगा इस छोटी कंपनी में, और एनीथिंग लाइक दैट. मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहें. एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस गौरव, लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग में पैसा मेरा लाइक सिर्फ 5 लाख का होना चाहिए, पैकेज इतना होना चाहिए, बट दैट्स द कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच. स्टार्ट फ्रॉम 3 or 3.5, anything. Start with a company that gets you trained in all the domains, or in whatever domain they are training you, the training is very good, so that package can be increased after 4-5 years exponentially. राइट, ट्रू ट्रू. ओके, तो आप काम के अलावा क्या करते हैं, मतलब आउटसाइड ऑफ वर्क कुछ हॉबीज या कोई साइड हसल है आपका? या मतलब रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट्स, और फाइनेंशियल्स का मुझे काफी इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने स्टॉक मार्केट भी करी है. इवन स्टार्टेड सम कोर्सेज जो मतलब पहले परस्यू करे, अब कुछ को बताता हूँ. सो दिस इज अ साइड काइंड ऑफ साइड बिजनेस. एंड रिसेंटली मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का वो भी लिया है, एनरोल किया है. दैट इज ऑल्सो साइड बिजनेस, फॉर विद अ व्यू ऑफ वेरी लॉन्ग टर्म. तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी उसको छोड़ के, जॉब को छोड़ के वहां बैठ जाऊंगा अपना बिजनेस के लिए. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ पार्ट टाइम थिंग. राइट राइट. तो अभी आपने जैसे बोला कि आप साइड में बिजनेस का भी कुछ सोच रहे हैं, तो ये नए कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए कॉलेज से आके सीधा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ है एडवाइस इसके बारे में? देखिए, पॉइंट ये रहता है कि अगर इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फ्रॉम योर फैमिली दैट आर ऑलरेडी इनटू द बिजनेस, देन आई थिंक दे कैन स्टिल परस्यू के आफ्टर ग्रेजुएशन बिजनेस स्टार्ट कर. बट अगर कोई बिल्कुल ही लेट्स से फ्रॉम सर्विस फैमिली आ रहा है, देन ही शुड एटलीस्ट हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 years. उसमें उसको पता लगना चाहिए हायरार्की कैसे होती है, एंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग, व्हाट इज द कंपनीज प्रॉफिट, एंड हाउ दे आर अप्रोचिंग द क्लाइंट्स, कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग. बहुत चीजें सीखने को मिलती है. फिर उसके बाद आप सोचो कि अब हम रेडी हैं, अब हम पैर रखेंगे बिजनेस में. देन इवन यू गेट अ लॉस, एटलीस्ट यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस टू उसको झेलने के लिए. अगर आप बिल्कुल ही विदाउट एक्सपीरियंस पैर रखते हो, इट इज फॉर श्योर कि आपको पक्का लॉस होना. बट आफ्टर 5-6 years of experience, you may or may not occur losses. और थोड़ा फंड्स भी बिल्ड हो जाते हैं, बिकॉज बिजनेस तो फर्स्ट डे से इनकम जनरेट करता नहीं है. राइट, एग्जैक्टली. आपको ये भी नहीं है कि आपको फैमिली पे टोटली डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो यू कैन
यू नो डू दैट विद योर ओन मनी। Yeah, और वो बड़ा एक रिलैक्सिंग चीज होती है कि एटलीस्ट आई एम वेस्टिंग, और मैंने अपना पैसा डुबाया, अपने घर वालों पे बोझ नहीं, true, राइट? true. कि डुबाने के लिए बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स में स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 2 लाख to 10 लाख। तो वो अमाउंट आप अगर जॉब कर रहे हो 4-5 years, तो उसमें आपका इकट्ठा हो जाता है। Okay. फाइनली लास्ट पॉइंट, हमारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपने काफी कुछ बताया है ना, अपने जर्नी के बारे में बताया। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ दो दो पॉइंट्स बताइए, जो नया अभी इनकम स्टार्ट किया है जिसका आना, वो कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट इसमें 2 पॉइंट्स हैं, मैं एक ही पॉइंट पढ़ाऊंगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। जो आपने सेव कर लिया, उसके बाद जो बचा उसको खर्चिए। अपने गोल्स के अकॉर्डिंग सेव करिए। एवरीवन नोज कंपाउंडिंग, जो इंजीनियरिंग से आ रहा है उसको कंपाउंडिंग का मतलब पता है, बट नो वन इज इम्प्लीमेंटिंग दैट इन देयर रियल लाइफ। ठीक है, इफ यू स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग, देन दैट इज बेटर फॉर यू, बेटर फॉर योर कमिंग लाइफ। सो पहले सेव करो बेस्ड ऑन द टारगेट। ठीक है, कि मुझे इतना सेव करना ही करना है सैलरी में से, एंड देन रेस्ट जो बच रहा है उसको स्पेंड कीजिए, जैसे मर्जी स्पेंड कीजिए। राइट, राइट। That's तो my advice for in terms of financial, correct. to meet financial goals in the life. तो समराइज करते हुए, अभी तक पारस ने हमें क्या जानकारी दी है उसके बारे में थोड़ा सा, एक, जो आप फर्स्ट जॉब के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चूजी मत हुई, बट एक ऐसी Right, कंपनी में जॉइन करिए जो आपको ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी दे, ज़्यादा चीज़ें सीखें। दूसरा, right, जितना आपको सीखने को मिले सीखे। हर चीज़, बहुत सारी फील्ड्स हैं दुनिया में, इंडिया में, मार्केट में, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखिए, तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे डीप में जाना है। तीसरा, right, इन्वेस्टमेंट के लिए एज यू सेड, लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ, सेव बिफोर यू स्पेंड। सीधा ब्लाइंडली स्पेंड मत करिए। मेक सम परसेंटेज ऑफ योर इनकम एज डेडिकेटेड सेविंग्स, उसको साइड में रखिए, उसके बाद खर्चा करिए। सो right. And saving investment can mean anything, either FD or अगर बैंक अकाउंट में रखेंगे फॉर श्योर वो सेव नहीं रहेगा। so very Right. very important points. So thank you for your time, Paras. I am sure viewers को Yeah, ये हेल्पफुल लगेगा। it was my pleasure यार। Of course, हम भी कभी थे कि हमें भी कोई ऐसी वीडियोस बना के थोड़ा सा आइडिया दे। So it's a great thing you have started, Gaurav. I think थैंक यू। this will help a lot of you know current graduates इस चीज के लिए कि हाँ हमें क्वेश्चन डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। राइट, थैंक्स अ लॉट पारस, थैंक यू फॉर योर टाइम।